नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज ढाका चलते हैं, जहां पर आपको याद होगा 5 अगस्त को शेख हसीना को आनन फानन में मुल्क छोड़ना पड़ा था और वो भारत आ गई थी। और उसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस के नीचे एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें जमात इस्लामी का एलिमेंट बहुत हावी है। अब वहाँ एक नया विवाद खड़ा हो गया है और विवाद यूँ है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू ने ये पूछा है, क्या किसी के पास प्रधानमंत्री शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर है। लोगों ने आर्मी चीफ जनरल वकार जमान से पूछा, क्या आपके पास है। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। शेख हसीना ने किसी को रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया और वो चुपचाप भारत आ गई। टेक्निकली शेख हसीना निर्वासित हैं, लेकिन आज भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और अंतरिम सरकार ने जो उनकी गवर्नमेंट को और पूरी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया, वो एक तरीके से गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसकी वजह से अब अंतरिम सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि जनरल इलेक्शंस की डेट्स तय होंगी, उनकी घोषणा होगी और वो सारी पार्टियां जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, जिन्हें सत्ता में आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उनके उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। तो हमने बात की श्री देवाद्युति दास गुप्ता से, जो कि एक 1971 की लड़ाई के वॉर हिस्टोरियन है और उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया है और पैनी नज़र बनाकर रखी है। The President of Bangladesh, Mohammad Shahabuddin Chuppu, has been asked by the people, the students of Bangladesh, to resign as soon as possible. These are the same students who had taken part in the protests against the Sheikh Hasina government. Now, some of these student leaders, especially naming Sarjis Alam, Nahid Islam, and Hasnat Abdullah, these people have got out on the streets of Dhaka and have rushed to the Bongo Bhavan with their own team to demand the resignation of the president. Why this has happened? It is because the president Shahabuddin Chuppu has said that he has found no official letter of resignation left behind or handed to him by Sheikh Hasina when she fled the country. Jamat Islami and their insiders inside the Yunus government want Shahabuddin Chuppu out, as after gunning down the last elements of the remaining government, of the remaining parts of the government that was there, Shahabuddin Chuppu was the last man to be chosen. As you might have seen already, even people in the election commission in Bangladesh have been replaced, and slowly Jamaat elements and their leaders are infiltrating and taking over these posts. Like, for example, the War Criminals Tribunal of Bangladesh now is headed by a former cadre of the Jamaat Islami Chhatra Shibir, the students' wing, and the same thing is chosen to happen by these anti-national and anti-liberation elements of Bangladesh in the government elements of Bangladesh. These elements want Mohd Yunus to be the next president of Bangladesh. Now, as the situation developed and students with a lot of their own gang, led by their leaders Sarjis Alam, Nahid Islam, maybe Nahid was not there, I have not seen him, but I think he must have been there, and of course led by Hasnat Abdullah. These people, when they rushed to the Bongo Bhavan to demand the resignation of President Chuppu, they were stopped by the Bangladesh military.
Now, Bangladesh military also, I think, retaliated, and one protester was killed with several wounded. And this sort of like was settled down, but still things are really hot in Bangladesh, especially in Dhaka city. Now, after this thing happened, Sarjis Alam, I mean the students who are actually a part of the interim government of Bangladesh, Sarjis Alam, Hasnat Abdullah, and Nahid Islam has called, almost threatening the army chief of Bangladesh right now, Lieutenant General Wakar, and they have been demanding their resignation, and they have been demanding his resignation as well. Now imagine, the Bangladesh armed forces, the Bangladesh army, at the end had supported the student movement and has decided to not fire on the protesters, and eventually also helped Hasina get out. इस सारी उथल पुथल के बीच अगर कोई निशाने पर है तो वो है बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार जमान, क्योंकि वो शेख हसीना के दूर के रिश्तेदार भी हैं और शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की आर्मी ने कई आंदोलनों को सख्ती के साथ कुचला भी था। इसलिए लोग उनका इस्तीफ़ा चाहते हैं। और इसके अलावा जमात इस्लामी ने कोई 3,500 आर्मी मैन की लिस्ट बना रखी है, जिनमें जनरल्स, सीनियर ऑफिसर्स, जेसीओज और जवान भी शामिल हैं, जिन्हें वो प्रो अवामी लीग मानते हैं और उन्हें हटाना चाहते हैं। जाहिर से बात है कि उसके बाद बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जमात इस्लामी के काडर्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा। The indirect admission of the Jamat Islami into Bangladesh government and the Bangladesh armed forces is a bad news for not only India but also for Bangladesh, as the re-entry of Jamat Islami into Bangladesh politics means the entire effort of the 1971 war is being taken down. The entire history of Bangladesh is under threat. At this moment, the student leaders who have been known to be involved with the Jamaat Islami and these anti-Bangladeshi elements and these anti-liberation war elements are eyeballing Lieutenant General Wakar and are calling out for his resignation if General Wakar doesn't support them. जाते जाते शेख हसीना, जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ये बता दिया कि हु इज द बॉस। आज वो निर्वासित भले ही हों, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में उनका दखल आज भी है और उन्होंने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। शेख हसीना के रेजिग्नेशन लेटर न होने के कारण पूरी अंतरिम सरकार विवाद के घेरे में आ गई है, संदेह के घेरे में आ गई है और इल्लीगल है। तो भारत से अगर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात करता है तो भारत के पास एक मजबूत दलील तो है कि किस हैसियत से और किस राइट से ये अंतरिम सरकार, ये आने वाली सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कर रही है। अगर कोई ढाका सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम सरकार की वैधता को चुनौती दे दे तो ये सरकार वाकई टिक नहीं पाएगी। लेकिन वहाँ भी जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सारे जजेस को बदल दिया है और आज अवामी लीग से सिंपैथी रखने वाले नेता, वकील, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स भागे भागे फिर रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बात आती है कि अगर बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयर के चीफ और प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन एक साथ रहते तो उनको हिलाना इतना आसान न होगा। इन सब के निशाने पे अगर कोई है
तो वो हैं जनरल वकार ज़मान, जिन्हें लोग शेख हसीना का रिश्तेदार जानते हैं और उनका करीबी मानते हैं। और ये आवाज़ उठने लगी है कि जनरल वकार ज़मान ने शेख हसीना को भारत भागने क्यों दिया, उन्होंने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो आज वहाँ पर एक अस्तित्व की लड़ाई है, और जब तक बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स और प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, जो कि सुप्रीम कमांडर भी हैं, एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का फ़ायदा उठा करके बांग्लादेश की राजनीति में अपना एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।